ان کی فہرست میں کچھ نام ابھی باقی ہیں، جرم گویائی کے الزام ابھی باقی ہیں۔ یوں تو لگتا ہے کہ حل ہو گئی مشکل، یوں تو لگتا ہے کہ حل ہو گئی مشکل، لیکن ذہن کے گوشوں میں اوہام ابھی باقی ہے۔ ذہن کے گوشوں میں اوہام ابھی باقی ہے۔ دستک موت بلاتی ہے کہ آغوش میں آ، دستک موت بلاتی ہے کہ آغوش میں آ، زندگی کہتی ہے کچھ کام ابھی باقی ہے۔ میری منزل تو ہے نزدیک پر راہیں مشکل، میری منزل تو ہے نزدیک پر راہیں مشکل، ہر قدم کہتا ہے کچھ گام ابھی باقی ہیں، ہر قدم کہتا ہے کچھ گام ابھی باقی ہیں۔ رونقیں لے کے مکیں اپنے ہی ہمراہ گئے، رونقیں لے کے مکیں اپنے ہی ہمراہ گئے، سونے سونے سے در و بام ابھی باقی ہیں۔ ایک الگ موڈ کا شعر ہے کہ کر دیں دو آتشہ شاید یہی تیرا نشہ، کر دیں دو آتشہ شاید یہی تیرا نشہ، چند قطرے جو تہے جام ابھی باقی ہیں۔ ان کی فہرست میں کچھ نام ابھی باقی ہیں، جرم گویائی کے الزام ابھی باقی ہیں۔ جب بھی میری تنہائی مجھ کو گھیر لیتی ہے، جب بھی میری تنہائی مجھ کو گھیر لیتی ہے، خواب کے سمندر میں ڈوب ڈوب جاتی ہوں، مختلف مناظر کی فلم چلنے لگتی ہے، ہر دفعہ یہ ہوتا ہے ایک خاص منظر کو بار بار جیتی ہوں۔ جب کہ کوئی دستک ہو اور در کے کھلتے ہی خط لیے کوئی قاصد جانے کتنے جذبوں کو گھر کو سونپ دیتا تھا، خط لیے کوئی قاصد جانے کتنے جذبوں کو گھر کو سونپ دیتا تھا، نامہ بھر کے جاتے ہی خط کو جب پڑھا جاتا، کتنے رنگ جذبوں کے یوں بکھر بکھر جاتا۔ ماں کی نم سی آنکھوں میں ممتا ابھرتی تھی اور لب سے بس ایسی ایک دعا نکلتی تھی، خوش رہو میرے بچے۔ کچھ نہ رخ سے ظاہر ہو ایسی لاڈ کوشش میں باپ کا بھی چہرہ تو سرخ ہو ہی جاتا تھا، اور پھر کسی لب میں ارتعاش ہوتا تھا، زیر لب تبسم بھی عکس بن کے چھاتا تھا، دو حسین آنکھوں کی کالی کالی پلکیں بس اٹھنے گرنے لگتی تھی۔ میں انہی مناظر کو بار بار جیتی ہوں اور یہ خیال اکثر میرے دل میں آتا ہے، کچھ تو خط میں تھا ایسا، کچھ تو خط میں تھا ایسا، جانے کتنے رشتوں کو، جانے کتنے جذبوں کو وہ سمیٹ لیتا تھا۔ کی شمعوں سے روشن ہے مسکانوں کے آتش دان، حسن کی شمعوں سے روشن ہے مسکانوں کے آتش دان، موسم گل میں دہک اٹھے ہیں گلدانوں کے آتش دان، موسم گل میں دہک اٹھے ہیں گلدانوں کے آتش دان، گرم ہوائیں بھیگے موسم آگ سے نسبت رکھتے ہیں، گرم ہوائیں بھیگے موسم آگ سے نسبت رکھتے ہیں، سرد ہوائیں سلگاتی ہیں ارمانوں کے آتش دان، سرد ہوائیں سلگاتی ہیں ارمانوں کے آتش دان، میر
इंशा जिए कह के गए, उर्दू वालों ध्यान से रखना दीवानों के आतिशदान। उर्दू वालों ध्यान से रखना दीवानों के आतिशदान। ख्वाब सुहाने अश्कों तबस्सुम अर्ज़ो समा के राज़ो नियाज़। ख्वाब सुहाने अश्कों तबस्सुम अर्ज़ो समा के राज़ो नियाज़। मेरे कलम में सुलग रहे हैं उन्वानों के आतिशदान। मेरे कदम में सुलग रहे हैं उन्वानों के आतिश। दरिया काट के खेत को सींचे, सबके पेट भरे लेकिन। दरिया काट के खेत को सींचे, सबके पेट भरे लेकिन। प्याज नमक से ठंडक पाए दहकानों के आतिशदान। प्याज नमक से ठंडक पाए दहकानों के आतिशदान। रूह पे कितने दाग लगे हैं, मुफलिस की आंखों में झांक। रूह पे कितने दाग लगे हैं, मुफलिस की आंखों में झांक। जिसके दिल में रोज जले हैं एहसानों के आतिशदान। जिसके दिल में रोज जले हैं एहसानों के आतिशदान। मक्का समाप्त फरमाइए। 2018 में मैं 2006 में राज करने गया था, फिर 2018 में भी। 2018 के बाद मुझे सफरनामा लिखा बाद गुजरा, तो दूसरे के मसाज थे। न कोई बड़ा, न कोई छोटा, न कोई अमीर, न कोई गरीब, न कोई महमूद, न कोई अयास। कमोबेश निस्फ घंटे के बाद मस्तूरा बुजुर्ग ने करवट बदली और उनका रुखे रोशन हमारी जानिब हो गया। हमसे कहा गए कि कहीं खुदा न खास्ता कोई सवाल न कर बैठे। अचानक उनके लबवा हुए और उन्होंने इंतहाई खंदा पेशानी के साथ पूछ लिया कि जनाब आप कहाँ से तशरीफ लाए। आवाज में बड़ी नरमी और जाज़िबियत महसूस हुई। हमें हौसला मिला, मगर फिर भी हमने डरते डरते कहा कि दिल्ली से आए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कहाँ से। हमने कहा कि जाकिर नगर से। उसके बाद हमने भी जवाबी तीर छोड़ा। हमारे सवाल पर उन्होंने बताया कि हम भी दिल्ली से आए हैं। हमने पूछा कहाँ से। बोले जामिया मिलिया इस्लामिया से। अब हम दोनों थोड़ा थोड़ा खुलने लगे। शायद दोनों के दिलों ने कहा हो कि और खुल जाएंगे दो चार मुलाकातों में। तकल्लुफात की पटरी पर बातचीत की गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ी तो उन्होंने कहा कि आप सहाफी तो नहीं। हमने कहा जी हाँ, आपने सही पहचाना, हम उर्दू के छोटे मोटे सहाफी हैं। फिर तो उन्होंने मुसाफा के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया, कहने लगे हाथ मिलाइए, मैं तो आपको जानता हूँ। अभी आपने हज से मुताल्लिक जो किस्त लिखी थी वो मैंने पढ़ी है। आपने बहुत उम्दा मंजर निकाली थी। उसको 3-4 किस्तें मेरी इखलास में दूसरे जगह पे चल। फिर तो दोनों लोग दूसरे से खुलते गए। उन्होंने बताया कि जामिया मिलिया इस्लामिया में शोबे बायो साइंस है। उन्होंने हमारे एक बुजुर्ग दोस्त शोबे उर्दू जामिया मिलिया इस्लामिया के साबिक सदर और दिल्ली उर्दू अकेडमी के साबिक वाइस चेयरमैन प्रोफेसर खालिद महमूद साहब की एहलिया का भी नाम लिया और कहा कि हम दोनों एक ही शोबे में। उन्होंने उनका नाम मुमकिन इसलिए लिया हो कि चूंकि हम उर्दू वाले हैं और खालिद महमूद साहब भी उर्दू वाले हैं, इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि दोनों में जरूर शनासाई होगी। उनका ख्याल दुरुस्त था, न सिर्फ शनासाई है बल्कि दोस्ती भी है और हम उनके दस्तरखान पर बारहा लज़्ज़ते कामोदहन भी हासिल कर चुके हैं। मज़कूरा बुजुर्ग ने अपना नाम डॉक्टर आरिफ अली बताया। उन्होंने ये भी बताया कि उनके अहिया डॉक्टर सरबत साहिबा भी हज करने आई हैं। वो भी जामिया मिलिया इस्लामिया से वाबस्ता है। वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में रही। वो दोनों अजीजिया में
हमारी बिल्डिंग 175 में हमसे ऊपर वाली मंजिल पर है, लेकिन वहां उनसे मुलाकात का शरफ हासिल नहीं हुआ। उनकी अहलिया की गैरतमंद तबीयत इस पर राजी नहीं हुई थी कि वो एक ही कमरे में दूसरे नामहरमों के साथ शब और रोज गुजारे, लिहाजा वो दोनों कहीं और मुंतकिल हो गए, किराए पे दूसरी जगह नहीं आ सके। डॉक्टर आरिफ अली साहब से बहुत से मौजूदात पर गुफ्तगू हुई। दौरान गुफ्तगू अंदाजा हुआ कि साइंस के उस्ताद होने के बावजूद वो बहुत ही सुथरा अदबी ज़ौक़ रखते हैं। अल्लामा इकबाल हो या गालिब, मीर तकी मीर हो या नज़ीर अकबर आबादी, या फिर माजी करीब के शोरा में हाफिज जालंधरी हो या दूसरे शोरा, बेशतर शोरा के बारे में उनकी मालूमात बड़ी उम्दा है, अशार भी खूब याद है। उस वक्त हमें इंतहाई खुशगवार हैरत हुई जब उन्होंने अपने तीसरे साथी की ज़बानी इंतहाई गैर मेयारी और औज़ानो बहूर से आज़ाद अशार सुने तो उन्हें उस्ताद रसा का खिताब दे दिया। गोया वो दिल्ली को उस्ताद रसा से भी वाकिफ है और उनसे वही वाकिफ हो सकता है जो शेरी ज़ौक़ रखता हो। चूंकि थोड़ा बहुत हम भी उस्ताद के कारनामों से वाकिफ हैं, इसलिए इस किताब पर बहुत महसूस है। बातों बातों में डॉक्टर आरिफ अली ने बताया कि वो तो साइंस के आदमी हैं, उन्हें मजहब से क्या लेना। अल्लाह के रसूल की जात से मुतल्लिक कई सवाल किताबों का मुताला शुरू कर दिया। फिर तो उनके दिल की दुनिया बतदरीज बदलने लगी और बदलती चली गई। अचानक उन्होंने हमसे पूछ लिया कि आपने सीरत की किताब अर्रहीकुल मख्तूम पढ़ी है? हमने फखरिया अंदाज में कहा जी हाँ, 2 बार पढ़ी है। उन्होंने ताबड़तोड़ जवाब दिया कि हमने 5 बार पढ़ी है। इस किताब और सीरत से मुतल्लिक दूसरी किताबों के मुताले ने उनके दिल के बंद दरवाजों को इस तरह चौपट खोल दिया कि वहाँ रसूलुल्लाह की मोहब्बत के अलावा किसी और की मोहब्बत का चिराग जल ही नहीं सकता। हज से वापसी के बाद हमने एक बार फिर अर्रहीकुल मख्तूम का लफ्ज़ मुताला किया। अब हम क्या बताएं कि इस तीसरे मुताला ने हम पर सीरत तजुर्बा के कैसे कैसे गोशे रोशन कर दिए और हमारे अंदरून में क्या क्या उत्तर मची। इस किताब के मुसन्निफ जामिया सल्फिया बनारस के उस्ताद मरहूम मौलाना सैफुर रहमान मुबारकपुरी हैं और इस किताब को सऊदी अरब की जानिब से सीरत पर तसनीफ करता किताबों के एक आलिमी मुकाबले में अव्वल किया गया। डॉक्टर आरिफ अली साहब की 5 रोज़ा हमनशीनी ने हमें ज़हनी तौर पर बहुत तकलीफ बख्शी। उसने इत्तेफाक मैदान अरफात में भी हम एक दूसरे के करीबी रहे। उनकी दिलचस्प और मोहब्बत आमेज गुफ्तगू ने हमें अपना गिरगिदा बना दिया। आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद उनके अंदर जो इंकिसारी और खाकसारी और मुलायमत है वो दिल को अपनी जानिब खींचती है और हम समझते हैं कि यह खाकसारी रसूलुल्लाह की ज़ात से उनकी वालिहाना मोहब्बत के सबब है। वो इस बात के बड़े कायल हैं कि अल्लाह के रसूल ने जो कि उम्मीद थे तने तनहा पूरी दुनिया में जितना बड़ा इनकलाब बर्पा कर दिया, उतना बड़ा इनकलाब इंतहाई तालीम याफ्ता अफराद पूरी की पूरी टीम के साथ नहीं बर्पा कर सकते। सच बताएं, अगर मिना के खेमे में एक गोशे याफियत ना मिला होता और इस गोशे में एक मुहिब्बे रसूल की हमनशीनी ना मिली होती तो ये 5 रोज बड़े खुश गुजरते। दरअसल ये नाम गोशे याफियत उन्हीं का दिया हुआ है। गोया गोशे में कफस के हमें आराम मिला। वहाँ कयाम के दौरान बार बार दिल चाहता कि उन बुजुर्गवार की ज्यादा खिदमत की जाए, लेकिन वहाँ तो सब बेदस्तुपा थे, कोई किसी की खिदमत करता भी तो कैसे। बहरहाल उनसे मुख्तलिफ मौजूदात पर गुफ्तगू होती है। अब दूसरे बुजुर्गवार के बारे में भी चंद बातें सुन लें। बाद में मालूम हुआ कोई एक वकील हैं और 30,000 कोर्ट में दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं। जामिया नगर के गफ्फार मंजिल में रहाइश पजीर हैं। उनका नाम अब्दुल रहमान नासिर या AR नासिर। उन्होंने अपना शनाख्ती कार्ड दिखाते हुए कहा कि देखिए, इस पर जो मेरी तस्वीर है उसमें मेरे दाढ़ी नहीं है, मगर अब मेरे चेहरे पर नूर है। हमने कहा कि जी आपने दुरुस्त फरमाया, बराह करम अब इसके वजाहत भी कर दीजिए। उन्होंने कहा कि जब हज से मुतल्लिक हमारी दरख्वास्त मंजूर हो गई और हम मियाँ बीवी हज की तैयारियां करने लगे कि एक रोज हमारे बेटे ने बड़ा चिंता मचा लिया। उसने कहा कि आप हज करने जा रहे हैं? हमने कहा जी हाँ जा रहे हैं। उसने कहा कि रसूलुल्लाह के शहर मुबारक यानी मदीना मुनव्वरा भी जाएंगे? हमने कहा बिल्कुल जाएंगे। वो कैसा मुसलमान जो फरीज़े हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब जाए और आकाए नामदार के दर पर हाजिरी न दे? उसने कहा तो फिर आप इस चेहरे के साथ कैसे जाएंगे? क्या उसने कहा कि अल्लाह के रसूल को ऐसा चेहरा पसंद था जो बारिश, आपका चेहरा तो दाढ़ी से आ रही है। हम खामोश हो गए। क्या दिल की दुनिया में हल्के से मछली। हमने कभी इस पहलू से सोचा नहीं था। हमारे दिल ने कहा तुम्हारा बेटा बिल्कुल सही कह रहा है, तुम ऐसा चेहरा लेकर रसूलुल्लाह के दरबार में कैसे जाओगे? मुझे पसंद नहीं। उसके बाद हमने अपनी दाढ़ी पर ब्लेड नहीं चलाया। इस तरह हम इस बारिश चेहरे के साथ हज की सादत हासिल कर लिया। उनसे भी अलग अलग मौजूदात पर गुफ्तगू हुई। अंदाजा हुआ कि वो दुनिया शरीफ और मजहबी किस्म के शख्स हैं। वो अपनी अहलिया के साथ हज कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने उनके दिल में अपने महबूब की जो मोहब्बत पैदा की है वो हमेशा कायम रखेगा।
एक छोटा सा मंजर और आई फली साहब का मैदान अरफात का वाकया है। हमारे कुछ साथी चले गए थे जबलेरा में, इधर मगरिब का वक्त गुजरने को हुआ, मगरिब बाद वहां से निकलना शुरू हो जाता है और असर बाद ही खेमे खाली हो जाते हैं। जब मगरिब का वक्त गुजरने को हुआ तो फितरी तौर पर उनके अहलिया की और हम लोगों की भी हालत गैर हो गई। अब डॉक्टर साहब फोन रिसीव नहीं करते, हमने 2-3 बार उनको फोन किया, उन्होंने रिसीव नहीं किया, जिसकी वजह से अंदेशे तराज ने हम लोगों को घेर लिया। उनकी अहलिया ने ये सोचकर कि उनकी वजह से हम लोग भी परेशान हो रहे हैं, हम लोगों से कहा कि आप लोग जाएं, हम यही उनका इंतजार करें। हमने उनसे कहा कि आपने ये कौन सी बात है, ऐसा कैसे हो सकता है, अगर हम ऐसा करेंगे तो ये हमारा बिल्कुल गैर इंसानी होगा, हम लोग आपको छोड़कर नहीं जा सकते, तो हम लोगों को भी यही पूरी रात गुजारनी है। उनको ये फिक्र कि चूंकि डॉक्टर साहब फोन नहीं उठा रहे हैं तो खुदा न खास्ता कहीं कोई बात तो नहीं होगी। बहरहाल हम लोगों ने बाहमी मशवरे से उनका सामान उठाया, उन्हें अपने साथ लिया, खेमे से बाहर निकले और गेट के पास आ गए। हमें भी तशवीश थी कि डॉक्टर साहब पता नहीं कहाँ रहते। इससे कबल मीना और अरफात में हाजियों के गुम होने और कई रोज तक गुम रहने के इतने वाकयात सुन रखे थे कि तशवीश में मुब्तला होना फिक्री। बात तजर्बाकार अफराद का कहना है कि अरफात में गुम होने वाला मीना या मक्का ही में जाकर मिलता है। तशवीश इसलिए भी थी कि ये खेमे तो दिन में भी नहीं पहचाने जाते, रात में क्या पहचाने। दोपहर के बाद एक बार हम पेशाब करके वापस आ गए थे तो रास्ते में डॉक्टर साहब मिल गए, कहने लगे कहाँ है। हमने पूछा क्या, बोले खेमा। हमने कहा आइए, फिर हम उनको लेकर खेमा में आए। एक बार हम भी भरी दोपहर में खेमा भूल गए थे। वो तो हमारे ग्रुप की कुछ खवातीन उधर से गुजर रही थी, उन्होंने हमारी रही पाई। तो जनाब जब निस्फुल नहार में ये खेमे अपना सुराग नहीं देते तो रात की तारीखी नहीं था। खैर गेट पर मुअल्लिम के दफ्तर के सामने मुअल्लिम के कई लोग मौजूद थे। हम लोगों ने उन्हें अपना मसला बताया तो उन्होंने तसल्ली देते हुए कहा कि आप फिक्र न करें, हम उनको मना ले आएंगे। उनकी अहलिया ने कहा इससे पहले तो मुज़दलिफा में वकूफ करना है और फिर उनके बगैर वो कैसे जाएंगे। उन्होंने कहा कि आप जाएं, हम मुज़दलिफा में उनको ठहराएंगे और फजर की नमाज के बाद मिना के खेमे में ले आएंगे। इसी दरमियान एक खातून ने जो हमारे ग्रुप में थी, उन्होंने हमसे पूछा कि क्या जो गायब लोग हैं पढ़े लिखे नहीं है। तो मैंने कहा भाई जामिया में प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर साहब की अहलिया ने कहा कि ज्यादा ही पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो डॉक्टर साहब के बगैर वहां से टलने को तैयार नहीं थे। उनकी बात माकूल थी, वो ऐसे कैसे जा सकते। इतने में उन्होंने बड़े पुरजोश अंदाज में बताया कि डॉक्टर साहब ने फोन रिसीव कर लिया। हमने फौरन मुअल्लिम के आदमी को दिया और उससे कहा कि वो डॉक्टर साहब को बोले कि नमरा हॉस्पिटल के सामने आ जाए, हमारा गेट उसके तकरीबन सामने ही है। कुछ देर के बाद डॉक्टर साहब का मुस्कुराता हुआ चेहरा नमदार हुआ। उन्होंने बताया कि वो साथियों से बिछड़ गए थे और फिर रास्ता भटक गए थे। इस तरह हम लोगों की और बखसूस उनकी अहलिया की जान में जान है। वहाँ बेशुमार अफराद रास्ता भटक जाते हैं। कोई अनहोनी बात नहीं और दिलचस्प बात यह है कि लोग फिर मिल जाते हैं। क्या यही बारे गम में उठा ना सके हम, यही बारे गम में उठा ना सके हम, उसे भूल कर भी भुला ना सके। यही बारे गम में उठा ना सके हम, उसे भूल कर भी भुला ना सके हम। अर्ज करता हूँ कि हमें और मिलने को सब मिल गया है वो पा ना सके हम। यही बारे गम में उठा ना सके हम, उसे भूल कर भी भुला ना सके हम। और ये सोचा था जी भर के देखेंगे उनको, ये सोचा था जी भर के देखेंगे उनको, भाई मिले तो नजर भी मिला ना सके हम। ये सोचा था जी भर के देखेंगे उनको, मिले तो नजर भी मिला ना सके हम। ये सोचा था जी भर के देखेंगे उनको, मिले तो नजर भी मिला ना सके हम। और कसम है तेरी तेरे दर के अलावा, कसम है तेरी तेरे दर के अलावा, कहीं अपने सर को झुका ना सके हम। कसम है तेरी तेरे दर के अलावा, कहीं अपने सर को झुका ना सके हम। यही बारे गम में उठा ना सके हम, उसे भूल कर भी भुला ना सके हम। अर्ज करता हूँ कि तसव्वुर में आना, तसव्वुर में जाना, तसव्वुर में आना, तसव्वुर में जाना, कदम इससे आगे बढ़ा ना सके। तसव्वुर में आना, तसव्वुर में जाना, कदम इससे आगे बढ़ा ना सके हम। कदम इससे आगे बढ़ा ना सके हम। और शेर देखें कि जमाने की बिगड़ी बनाई है हमने,
कासिम साहब, जमाने की बिगड़ी बनाई है हमने मगर अपनी बिगड़ी बना ना सके। जमाने की बिगड़ी बनाई है हमने अपनी बिगड़ी बना ना सके। कौन का यही अमरसिया है। जमाने की बिगड़ी बनाई है हमने, जमाने की बिगड़ी बनाई है हमने मगर अपनी बिगड़ी बना ना सके हम, मगर अपनी बिगड़ी बना ना सके हम, नशेमंदी दिल का बचा ना सके हम, यही बारे गम में उठा ना सके हम, उसे भूल कर भी भुला ना सके। बहुत अच्छी बहुत। वो खानादार उनके वालिद आप जानते हैं, उनको मार दिया था। पट्टन में थे, वो जा रहे थे हज के लिए, अकबर नाराज हो गए थे, तो उन्होंने यही महसूस किया कि बेहतर है तो मैं हिंदुस्तान छोड़ दूं। वही बादशाह बनाने वाले थे अकबर को, इतना बड़ा आदमी था। बहरहाल तो ये छोटे से 4 बरस के थे, अकबर इन्हें अपने यहाँ ले आए, आ गए, इन्होंने अपने घर में बांधा था उन्हें। तो ये एक तरह उनके लड़के एक दूसरे शख्स थे, वो भी उन्हीं की तरह अकबर के दरबार में उनका बड़ा रुतबा था, और वो अकबर के साले भी थे, राजा मान सिंह। पर ये दोनों बहुत एक दूसरे से दोस्त थे। ये दोनों राजा मान सिंह भी सिपह सालार थे अकबर के, और ये भी सिपह सालार थे। लेकिन जो अस्करी और फुतूहात के सिलसिले में अकबर के दौर में जो कुछ खानदान को मिला, वो राजा मान सिंह को नहीं मिला। वो इतनी फुतूहात नहीं कर सके। इन्होंने तो पूरा दखन इन्होंने ही फतेह किया था। सबसे पहले गुजरात फतेह किया, फिर दखन आ गए, लेकिन बड़ी बुरी मौत भी हुई। वो फारसी का एक शेर है, मैं वो शेर तो नहीं पढ़ता, लेकिन मैं आपको उसका मफहूम बताता हूं। ये शुआरा बेबुनियाद बातें नहीं करते, उनका मुशाहिदा होता है, तजुर्बा होता है, और दूसरों के मुशाहिदात और तजुर्बे से वो फायदा उठाते हैं, वो उनको वो नज़्म करते हैं। तो एक शायर ने कहा है कि आप अगर फलदार दरख्त के नीचे बैठेंगे तो वहां चोट लगने का खतरा तो लाजमी है। आप बैठे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, बात कर रहे हैं, सो रहे हैं, एक फल गिर जाएगा तो सर फूट सकता है आपका, चोट लग सकती है आपकी। वो इसी पर था, वो उसके सामने था, वो भी दरबार का शायर था। तो ये दरबार को उसने एक फलदार दरख्त समझा, इस्तिआरे के तौर पर इस्तेमाल किया, और बताया कि भाई इसके नीचे बैठोगे तो यही होगा। उनकी औलाद को कत्ल कर दिया जहांगीर ने, नहीं शाहजहां ने। वो भी बेचारे बेइज्जत मरे, लाहौर में मरे थे, फिर यहाँ लाकर उन्हें दफन किया। वो तो इत्तेफाक से उन्होंने अपनी बीवी का मकबरा था ही उनकी, वो बना दिया था, तो उनके लिए उन्हें उसी में दफन कर दिया, वरना मुमकिन है उनका मकबरा भी ना होता। महाराज मैं बताना ही चाहता हूँ अपने दोस्त को कि ये दोनों बहुत दोस्त थे, मान सिंह और खाने खाना। एक दिन खाली वक्त होगा कि भाई आओ ये शतरंज खेलेंगे, दोनों बैठ गए शतरंज खेलने। खाने खाना छोटे थे उम्र में, राजा मान सिंह, और शर्त ये रखी कि जो हारेगा वो बिल्ली की आवाज निकालेगा। आप ऐसा तो रखने कोई माना ही नहीं था। वो कोई मसलन मामूली लोग नहीं थे, लाखों करोड़ों रुपया तो ये सब दोनों दानपुर में दिया करते थे। दोनों इतनी दौलत थी, तो पैसे रख के तो रखने के लिए ये मान सिंह ने कहा कि देखो खाने खाना, मैंने बताया खाने खाना छोटे उम्र में, कि जो हारेगा वो बिल्ली की आवाज निकालेगा। खेल शुरू हुआ, खाने खाना हार गए और वो लगे जाने। राजा साहब ने उनका हाथ पकड़ लिया कि जाने नहीं दूंगा,
बिल्ली की आवाज निकाल। अब आप यहां से देखिए, मैं पहले आपको बता दूं, फारसी में आमदन के माने होते हैं आना, और अगर उसके मुतारा है आयत, और उसमें अगर आप मी लगा दें तो प्रेजेंट टेंस हो जाता है। तो आमदन से मी आयत ये प्रेजेंट टेंस है। मैं अभी आता हूं। मी आयत, खाने खाना खड़े थे, उनका हाथ पकड़ लिया था, तो उन्होंने मी आयत को मियां इस तरह कहा कि बिल्ली की आवाज मालूम। तब राजा साहब ने उन्हें छोड़ा। तो मेरे अजीज, ये इस तरह की बातें महफिल को रंगीन बनाने के लिए और जरा चेहरे पर हंसी आए, खुशी हो, की जाती रहती हैं। भारत में मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मैं एक दफा फिर आपको बहुत बहुत आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ, और आप हजरात से ये दुआ करता हूँ कि हम आपस में एक दूसरे के लिए खैरियत की दुआ मांगे, और शुक्रिया अदा करें अपने डॉक्टर रकीब साहब का कि इन्होंने तमाम खतरात बोल लेकर हम सबको यहाँ जमा कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ह्यूमर की बात हो रही थी, तो आजकल टीवी के ऊपर 2 कॉमेडियंस का जिक्र आता है और जेल में बंद है, FIR दर्ज हो गई है, और जो NDTV का एंकर है वो ये कहता है किसी तरह से ये ह्यूमर जिंदा रहना चाहिए, लोगों को हंसने की आदत भूल गई है। ठीक कहा कासमी साहब ने, और आपको हंसाया भी उन्होंने, और फारसी से मदद ली। फारसी के तो वो वालिद हैं, उसे मदद दी, और अपनी आज की तकलीफ को उन्होंने एक जैसे कोई किस्सा वो होता है ना, उस अंदाज में कोशिश की, और यही खसूसियत शायद फारूकी साहब में भी थी। और कासमी साहब तो फारूकी साहब की बहुत बड़े दोस्त भी माने जाते हैं एक तरह से, और उनका जो मुताला है उनके बारे में पहुंच जाता है। पिछली बार जो जिक्र आया था उनका यहाँ पर, और अखिल साहब ने एक दिन ये भी फोन किया था कि ताज़ियतनामा यहाँ से लिखा जाए और अखबारों में भेजा जाए। आज जब हम यहाँ से रुखसत हों तो दुआएं करें मग़फ़िरत को उनके लिए, कि खुदा उनको कबूल करो, जन्नत नसीब करे। उनका जहाँ तक फारूकी साहब का ताल्लुक है, मैंने कल उनकी 2-3 किताबें निकाली बहुत दिनों के बाद। मुझको नहीं मालूम था कि शेर शोरंगेज की 4 जिल्दें हैं। जब मैंने खरीदा था ये उनका पूरा 3 किताबों का है जखीरा, तो 3 थी, तब 4थी नहीं थी उसके अंदर। लेकिन एक दिबाचा जब मैंने पढ़ा तो उसमें जिक्र आया, फारूकी साहब ने कहा कि 4था होगा। पहले उनका भी ख्याल नहीं था कि मैं 4 करूंगा, उनका भी ख्याल पहले 3 का ही था। एक ये बात उसमें हुई। एक उनकी और किताब है कर्नल शेर, गैर शेर और नसर, उसमें एक मजमून है गुबारे कारवां के नाम से, जो आजकल में शायद आज से 50 साल पहले छपा। तब उनके वालिद जिंदा थे, और पूरा मजमून उन्होंने अपने वालिद को पढ़ के सुनाया। अगर आप वो मजमून पढ़े या यहाँ हम उसकी कॉपियां लोगों में बांटें, तो उनका जितना भी पस मंजर है, उनके खानदान का, शेर व शायरी का, मजहबी अकीदों का, और जो कुछ भी उनकी तरबियत के मरहले थे, सब का वो बहुत अच्छा है। जब मजमून उन्होंने अपने वालिद को सुनाया तो वालिद ने एक ही बात कही कि बेटे, तुमने अपनी तारीख पैदाइश इसके अंदर नहीं लिखी। तो उन्होंने आखिर में वो जुमला जो है वो सितंबर का महीना और साल जो है उसके अंदर कर दिया, और वो कहने लगे, उन्होंने फिर आकर ये लिखा है कि मेरा मजमून तो मेरे वालिद ने सुन लिया था, लेकिन इसको आजकल में छपा हुआ उन्होंने नहीं देखा। ये बात है। अब फारूकी साहब का मतबा बहुत बुलंद है। मैंने एक ही शेर मीर का उसमें देखा, तो उसके अंदर मेरे दिल में एक आता था, एक मीन्स 1, और कई मानों उन्होंने निकाले उस एक के, और फिर मीर के ही दीवान में से कई और शेर निकाले, फिर और लोगों के शेर भी उसके अंदर। इसका माने यह है कि जब वो किसी शेर की तशरीह करते थे तो तनकीद ही नहीं होती थी, तहकीक भी साथ होती थी, और पता नहीं कितने मतालब उसके निकाल लेते थे, और फिर वो कहते थे कि मैं लुगत देखता हूँ कि उसमें कितने मानी होते हैं,
और ये बात भी बिल्कुल सही है कि अगर आप लुगत में किसी लफ्ज के बारे में देखें तो कई ऐसे अल्फाज भी हैं जिसके 50, 60, 70, 80 मानी भी मिलते हैं। अंग्रेजी में भी ये बात है, अंग्रेजी में भी ये बात है। ये जैसे मियाँ का लफ्ज जैसे है, मेरे ख्याल में अगर आपको कोई भी लुगत देख लीजिएगा उसमें से 25-30 माने आपको इस मियाँ के मिल जाएंगे, जिसमें उस्ताद भी आ जाता है, ये सब दोस्त भी आ जाता है, महबूब भी उसके अंदर है। कोई भी शख्स जिसका आप नहीं जानते उसी को आप मियाँ कह देते हो कि मियाँ जरा इधर आना। बहुत अच्छा। फिर एक वो ये भी मैंने देखा कि उनकी किताबों के अंदर जो अंग्रेजी नाकदीन है उनका बहुत जिक्र है। T.S. Eliot का जिक्र है उसके अंदर, आई रिचर्ड्स का जिक्र है, कॉलेज का जिक्र है। हालांकि मैंने कॉलेज को कभी नकाद के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया। कॉलेज को मैंने बतौर शायर को इस्तेमाल किया है। बहुत सारी नज़में उनकी ऐसी हैं जैसे कैनिशन मैरिनर, जिसको कि बूढ़ा क्या कहा जाएगा उसको, जहाजी, बूढ़ा जहाजी, जो उर्दू में तर्जुमा होगा उसका कैनिशन मैरिनर का, मैंने बहुत कोट किया है उसको। लेकिन उन्होंने उसकी तनकीद का जिक्र किया और ये कहा कि जब मैंने शेक्सपियर को पढ़ा तो फिर मैं शेक्सपियर का ही हो गया, और अब गालिब का हूं मैं और शेक्सपियर का हूं। अच्छा, फिर तकाबुली तशरीह वो करते थे। जब उन्होंने जिक्र किया शाहीन का भी, तो ये कहा उसके अंदर कि बाकर की जो शरह है गालिब के दीवान के बारे में वो ज्यादा अच्छी है। वजह बताई उन्होंने कि बाकर ने बाकी जो शाहीन है उनके भी जो तराजिम है वो उसके अंदर पेश कर दिए हैं। आलिया मसरूर ने जोश मनसियानी के बारे में ये लिखा, ये बच्चों के लिए तो ठीक है लेकिन मोलमीन के लिए ये ठीक नहीं है। अब उन्होंने फिर अपनी तफहीम गालिब जो है तो उन्होंने जो अपनी लिखी, मैंने उसको भी देखा, एक शेर उसके अंदर भी देखा, बहुत मेहनत से काम लेते थे वो, तह तक जाना एक बात की, और बहुत मुताला करने के बाद, तहकीक करने के बाद फिर उसकी शरह लिखना, ये उन्हीं का हिस्सा था, किसी और का हो नहीं सकता। तो हमें आज जब हम रुखसत हो यहाँ से तो दुआ करते हुए यहाँ से जाना चाहिए। अब कुत्ते बिल्ली की बात आपने छेड़ी थी। मेरे घर में एक कुत्ता था और अच्छा था, कोई तकलीफ नहीं मुझको, लेकिन वहां एक बिल्ली आ गई और उसके बच्चे भी हो गए। अब कुत्ता हासिल हो गया और बहुत शोर मचाए, वो बहुत झगड़े और बिल्ली को आने नहीं दे वहां पर। हमको एक लाठी रखनी पड़ती थी उन दोनों को जुदा करने के लिए कि तो जब कुत्ते को ये मालूम हो गया कि कोई फर्क नहीं होगा, मेरे साथ भी उतनी मोहब्बत है जितनी पहले होती थी, तो दोनों ने, कुत्ते ने और बिल्ली ने, एक ही कटोरे से दूध पिया, एक ही कटोरे से दूध पिया। लेकिन मुझे ताज्जुब तब हुआ जब बिल्ली ने अपने बच्चों को अपने करीब नहीं आने दिया। जब वो करीब आते थे तो वो नहीं, उनको भगा देते थे और बच्चे चीखते थे जब उनकी माँ आती थी। लेकिन फिर ये भी हुआ कि एक दिन बिल्ली बीमार हो गई, ऐसी बीमार हुई शायद जैसे फालिज हो जाता है ना, ऐसे डॉक्टर हैं आप जानते होंगे। फिर वो बिल्ली बेचारी बिल्कुल बेबस हो गई और बच्चे चारों तरफ खेल रहे हैं उसके, और बिल्ली का हाथ नहीं अब उठ रहा। वही बिल्ली जो पहले उनको खाना चाहती थी, उनको मारना चाहती थी, आज वो, मैंने कहा कि सफरिंग हैज मेड दिस कैट ए बुद्धा, कि ये जो गम इसकी जो है, जो इसकी तकलीफ है, इस तकलीफ ने, इस गम ने, इस बीमारी ने इसको महात्मा बुद्ध बना दिया है। महात्मा बुद्ध भी तो इन्हीं लोगों को देके, बूढ़ों को और मरीजों को देके बुद्ध बने थे, तो ये उसका हाल हुआ। ये एक बात है, ये डॉक्टर भी जानते होंगे और काश्मीर साहब शायद आपको भी अच्छा लगा होगा। ये होता है, जानवरों के अंदर भी हसद तो जरूर होता है। अब मेरे पास आजकल जो मेरा कुत्ता है, जैसे मेरे ग्रैंडसन के यहाँ बिटिया पैदा हुई तो उसको बहुत जेलसी हुई, लेकिन अब ये सूरत है, वो 15 महीने की हो गई है, तो वो उसको बुलाती है, उसका नाम विलियम है, उसको कहते बिल्लू इधर आओ, गो, और उसको बिस्कुट दे दिया तो वो उसके हाथ से खा लेता है, कुछ नहीं कहता उसको। पहले उसको बहुत हसद होता था कि ये बच्ची जो आ गई है तो मोहब्बत तकसीम हो जाएगी। अब ये तकसीम का झगड़ा आप जानते हैं चीन और हिंदुस्तान में भी है, और बिल्ली और बच्चों के बीच के अंदर भी होता है। अब आपने कोरोना का जिक्र किया, मेरी तो साहबजादी के सारा खानदान कोरोना का शिकार हो गया था, लाखों रुपए खर्च हो गए, और सभी लोग ना, जितने भी घर के खानदान के अफराद थे, एक अस्पताल में दाखिल नहीं हो सके। कोई इधर है तो कोई 15 किलोमीटर दूर है, और लाखों रुपए उन्होंने पहले रखे, वो चेक भी नहीं लेते थे, कुछ नहीं, क्या कैश पैसा तो तब हम जो है इलाज करेंगे। हजरात और खवातीन, आज के हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर गालिब अकेडमी की तस्वीर छपी है, बहुत अच्छी है, और अकील साहब के बारे में 2-3 जुमले लिखे हैं, इनकी नरमगुफ्तारी के बारे में, नरमिजाजी के बारे में, लेकिन बहुत अच्छे हैं। और ये 2-3 जुमलों में उन्होंने बात की
آپ کا بھی ذکر ہے, عباسی صاحب کا بھی ذکر ہے. اس کے اندر چھوٹا مضمون ہے لیکن جامع ہے, اور غالب کے 5 شعر اس کے اندر ہے. 3 شعر تو جو بالکل حسب حال ہے کہ اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو تو وہ حسب حال ہے. اور قفس والا بھی جو ہے تو حال ہے, وہ سہیل انجم صاحب نے, سہیل انجم صاحب کا جو افسانہ کیا نام سفر نامہ ہے, مجھ کو اگر وہ معاف کیے ہیں تو افسانوی انداز بھی اس کے اندر ہے. اور یہ بھی ہے کہ غالب کے دیوان میں سے شاید کوئی 5-7 جملے تو کئی دفعہ آ گیا اس کے اندر, کئی دفعہ آ گئے. گوشے میں قفس کا مجھے آرام بہت ہے, یہ بھی آپ اس کے اندر تھا نا سہیل صاحب نے. تو اس زمانے غالب اکیڈمی میں آ کر ہر آدمی غالب کا ہی ہو جاتا ہے, اسے کچھ بھی کہنا ہو غالب کے بنا اس کے لیے کہنا جو ہے تو بہت مشکل ہو جائے گا. یہ اس کے اندر ایک بات رہی. اچھا لگا آج کا پروگرام بھی. یہ ٹھیک ہے کہ گنتی کم ہوتی ہے. میں ذکر کیا کرتا ہوں ایک تجربے کا کہ یہاں دلی یونیورسٹی کے اندر, اچھا فاروقی صاحب نے بھی کمپیریٹیو لٹریچر پر بہت زور دیا, لیکن یہاں جو دلی یونیورسٹی میں بنیاد گزار تھے کمپیریٹیو لٹریچر کے ڈپارٹمنٹ کے, تو وہ تھے ڈاکٹر آر کے داس گپتا, بہت بڑے عالم, اور بعد میں نیشنل لائبریری کلکتہ کے وہ ڈائریکٹر ہو گئے. تو ایک دن انہوں نے کہا, پہلے تو ایک دن انہوں نے لیکچر دیا, 5 لوگ تھے صرف اس کلاس کے اندر کمپیریٹیو لٹریچر کے اندر, میں صرف مہمان کی صورت میں وہاں پر تھا. ان سے میں نے سوال کیا, میں نے کہا ڈاکٹر گپتا آپ نے اپنی تقریر میں 2 لوگوں کا نام چھوڑ دیا ہے. تو بڑے حیران ہوئے, کہنے لگے مسٹر سو اینڈ سو, آج تک میرے تقریر پر کسی نے کوئی انگلی نہیں اٹھائی, آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ اچھا بتائیے میں نے کون سے 2 لوگوں کا نام چھوڑ دیا؟ ہم نے اپنے اقبال کا ذکر نہیں کیا. انہوں نے فوراً اقبال کا شعر سنا دیا, وہ مسجد تو بنا لی دم بھر میں, فوراً 1 سیکنڈ نہیں لگایا انہوں نے, اور یہ بتایا کہ اس سال جو پیدا ہوئے, اس سال جو ان کا انتقال ہوا. یہ پھر ہم نے ایک انہیں کے جگدیش چندر بوس کا ذکر کیا کہ یہ میری غلطی ہے, میں بنگالی ہوں اور جگدیش چندر بوس کو بول دیا. تو یہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک دفعہ ایک لیکچر تھا میرا کلکتہ کے اندر, اور بارش ہو گئی اور کوئی نہیں آیا. تو ہم نے کہا کون تھا وہاں پر؟ کہنے لگے تو چیئرمین تھے جیسے عقیل صاحب, یہاں پر قاسمی صاحب ہے, ایک میں تھا. میں نے کہا ڈاکٹر ہوتا پھر ہوا کیا؟ پہلے میں نے مضمون پڑھا, آپ نے پورا مضمون پڑھا. ہم نے کہا اس کے بعد کل اگلے دن اسٹیٹسمین میں پوری خبر چھپی کہ ڈاکٹر آر کے داس گپتا نے اپنا لیکچر پڑھا اور وہ بہت بہت اچھا تھا. یہ اس کے اندر جو ہے تو اس کے اندر ہوا. یہ تعداد کی کوئی بات نہیں ہے. ملٹن نے اپنے پیراڈائز لاسٹ کے شروع میں یہ لکھا ہے کہ مجھ کو سامعین چاہیے, قارئین چاہیے, لیکن تعداد میں کم ہو مگر ہوں جو کہ سوگن فہم ہوتے ہیں. آپ لوگ درباری اکبری کے رتن ہیں, 9 رتن ہیں, اس میں گنتی کی کیا ضرورت ہے؟ گنتی کی کوئی ضرورت نہیں. میں اب 2-3 شعر پڑھ کے چلوں یا نہیں پڑھوں؟ آپ بتائیے. اس میں بھی غالب ہے. عرض کرتا ہوں کہ جب سے ایک رہبر کامل ہے گریزاں مجھ سے, جب سے ایک رہبر کامل ہے گریزاں مجھ سے, ہر قدم دوری منزل ہے نمایاں مجھ سے. کل جنہیں تیرے حریفوں نے بجھا ڈالا تھا, زندگی آج وہ شمع ہے فروزہ مجھ سے. کل جنہیں تیرے حریفوں نے بجھا ڈالا تھا, زندگی آج وہ شمع ہے فروزہ مجھ سے. اور جانے کس خطہ عالم سے گزرنا میرا, میں ہوں ایمان سے پریشان میرا ایمان مجھ سے. جانے کس خطہ عالم سے گزرنا میرا, میں ہوں ایمان سے پریشان میرا ایمان مجھ سے. یہ حقیقت ہے میرے مولا تیری رحمت کے بغیر, مسئلے دہر کے ہوتے نہیں آسان مجھ سے. یہ حقیقت ہے میرے مولا تیری رحمت کے بغیر, مسئلے دہر کے ہوتے نہیں آسان مجھ سے. اور ان کی محفل میں مجھے کون ٹھہرنے دے گا, ان کی محفل میں ہے سب لوگ پریشان مجھ سے. ان کی محفل میں مجھے کون ٹھہرنے دے گا, ان کی محفل میں ہے سب لوگ پریشان مجھ سے. اور میں ہوں درویش, مجھے آتا نہیں نفرت کرنا, غیر ممکن ہے کہ دشمنوں بھی ہو نالا مجھ سے. غیر ممکن ہے کہ دشمن بھی ہو نالا مجھ سے. اور یہ آخری شعر ہے کہ میں نے مانا کہ تھی مجنوں کی وراثت کل تک, آج زندہ ہے کمل شان بیاباں مجھ سے.